So, welcome to Goran's Astro Home. Gupta ji, today we will discuss about importance of Navansh, Okay. and this is the part one. So, let's begin. So, Navansh is the fruits of the dharma accrued by one in the past lives. So, the ninth division or the D9 chart, it gives us a glimpse of the activation of the luck we will have in this life based on the past dharma or good deeds which we have accrued. Now कैसे ये काम करता है? It is like a mobile signal of our handset. Mobile signal, so mobile is like our D1 chart. Mobile can be very costly as well. हो सकता है कि आप एप्पल का फोन रखें, बट उसमें अगर सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहे हैं तो आपके फोन में कुछ भी चीज ठीक नहीं चलेगी. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ यू कीप अ 10,000 रुपी और 7-8 हज़ार रुपए का या 10,000 रुपए का भी फोन हो, विच इज नॉट लुकिंग, मतलब जो विच इज द D1 चार्ट, जो एक एवरेज लुकिंग चार्ट हो, बट अगर उसमें मोबाइल सिग्नल्स मतलब पास्ट अक्रूड धर्म अगर काफी हो, विच मीन्स द मोबाइल सिग्नल्स आर क्वाइट गुड, तो यू विल गेट गुड फ्रूट्स, मतलब फोन अच्छे से चलेगा आपका. तो इन संस्कृत नवा मीन्स ग्रह. Navamsha is also called as Grahamsha, and Amsha means the division. So Navamsha is the ninth division. It showcases the ninth division. Navamsh holds the secret of all good or not so good karma or deeds which we call, which we have done in the past lives, due to which we will experience various events and situations in this life. साउथ इंडिया में देर आर सेवरल एस्ट्रोलॉजर्स जो D1 चार्ट देखते ही नहीं हैं. They directly have a look on the D9 chart and they start predicting. Noman's chart is a really important chart. The Noman's chart tells you about your real inner strength or the soul of the planets in the which are in the लगन चार्ट. तो लगन चार्ट में क्या प्लेसमेंट है और नवमास में कैसा प्लेसमेंट है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंट. It tells you about your luck in this life. And basically, the Navamans chart was used for spouses or married life. But gradually, जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च बढ़ी, it was found कि नवमांश को हम मैरिज के अलावा और भी चीज़ों में यूज कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो हैव अ जजमेंट ऑफ हाउ द प्लैनेट्स विल बिहेव और फ्रूट्स कैसे रहेंगे प्लैनेट्स के in our this life. So how to prepare an Navamans chart? We already know that there are 27 nakshatras and each nakshatra का bandwidth is 13 डिग्री 20 मिनट. हर नक्षत्र को 4 पद में डिवाइड किया गया है. तो bandwidth of each nakshatra की bandwidth is 13 डिग्री 20 मिनट, which is 800 minutes. If we divide it by 4, it becomes 200 minutes. तो एक पद की जो bandwidth है, that is 3 degrees 20 minutes. 3 डिग्री 20 मिनट्स का हमने डिस्कशन अपने केपी के कोर्स में भी किया था, जो आपको याद होगा, जिसमें हम कंजंक्शन पे जब बेसिकली हम बात कर रहे थे, देन वी स्पोक अबाउट दिस 3 डिग्री 20 मिनट्स. गुप्ता जी, Yes. रोमांस इज द नाइन्थ डिवीजन ऑफ अ साइन. तो इफ वी डिवाइड
a sine which is having a bandwidth of 30 degrees by 9, it comes to be 3 degrees 20 minutes, which exactly matches with the bandwidth of a pad. तो एक उसमें 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो जैसे अगर हम एरी साइन की बात करें तो एरी साइन में अश्वनी, भरणी और 1/4 ऑफ कृतिका, तो 4 पद अश्वनी के, 4 पद भरणी के और 1 पद कृतिका का, तो कुल मिलाकर के 9 पद। तो नवमांश में क्या है, देयर आर 9 पद। I've written the bandwidth of each pad. They all have a difference of 3 degrees 20 minutes. तो पहला होगा 0 to 320, फिर दूसरा होगा 3 degrees 20 minutes to 640 and so on. So we can, the last pad is from 26 degrees 40 minutes to 30 degrees. You can see it on your screen. अब हमारे पास 3 तरीके की राशियां होती हैं। एक होती है मूवेबल 1 4 7 10, फिक्स्ड 2 5 8 11 एंड डुअल 3 6 9 and 12. Gemini, Virgo, Sagittarius and Pisces. Now how to prepare the Navamans chart? So Navamans is the 9th division. अब what we follow is, we are supposed to follow the regular order of zodiac signs, which means the first Navamans of Aries sign will start from Aries only. तो एरीज का अगर हम डिवीजन करें तो पहला नवमान स्टार्ट होगा एरीज से एंड 9th विल बी सेजिटेरियस। ऑन अ सिमिलर वे टॉरस का अगर हम डिविजन्स करें तो टॉरस का पहला नवमांश विल स्टार्ट फ्रॉम कैप्रिकॉर्न एंड द 9th विल बी वर्गो। तो ये हो गया हमारा कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड वर्गो। Okay, the first navmansh of Gemini will then start from Libra and the 9th one will be Gemini. ऐसे ही the first navmansh of Cancer sign will start from Cancer and last one would be Pisces. यहाँ तक there is nothing much. I hope it is clear. Yes. Okay. So we get a technique for the placement of navmansh from here. If the sign is movable, then count the part of navmansh and place it in the same way that many signs away from the place from the लगन चार्ट। जैसे अगर कैंसर में कोई प्लैनेट है और वो पहले ही पद में है तो वो हम कैंसर में ही प्लेस कर देंगे। अगर एरीज में है तो एरीज में ही प्लेस कर देंगे। अगर वो फिक्स्ड है तो हम उसमें पहले 9 ऐड करेंगे और फिर पद के प्लेसमेंट को ऐड करेंगे। हाउ वी विल डू इट, दैट वी विल नो। अगर डुअल है तो हम उसमें पहले 5 ऐड करेंगे, फिर उसमें नवमांश का पद ऐड करेंगे, मतलब उस साइन का पद ऐड करेंगे और हम प्लेस कर देंगे। तो लेट्स डू अ एक्सरसाइज। दिस इज सैंपल चार्ट। इसमें सबसे पहले देखो कि लगन जो है हमारे कितनी डिग्रीज की है। लगन हमारी 11.9 मिनट्स, 11 डिग्री 19 मिनट्स, 11 डिग्रीज 19 मिनट्स। तो ये हमारे चौथे पद में आई, चौथे पद में आई।
क्योंकि लगन स्टार्ट हो रही है कैप्रिकॉर्न से, तो वी विल काउंट 4th फ्रॉम कैप्रिकॉर्न. तो लेट मी हाईलाइट. 11, 12. Okay. So this is the first from Capricorn, second, third and fourth. तो हमारी जो लगन है क्लियर ऑल ड्राइंग, यस. तो हमारी जो लगन है वो चौथे पार्ट में वी काउंट 4th फ्रॉम कैप्रिकॉर्न विच इज एरीज. तो 9 मार्च का लगन स्टार्ट हुआ एरीज से. लेट्स हैव अ लुक एट सन. सन इज इन कैंसर और सन है 1 डिग्री 19 मिनट का. तो पहला ही पद हुआ, कैंसर में ही रहेगा. तो वो कैंसर में ही हो गया. मून, मून इज इन टॉरस. और उसका फर्स्ट हुआ आपका कैप्रिकॉर्न. और हम 7th पार्ट. एक मिनट, मून की डिग्री है 23 डिग्री, तो 23 डिग्री मतलब 7th पार्ट हो गया. तो हम पहले जो है टॉरस से 9 काउंट करेंगे, तो विच विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर यहां से 7 काउंट करेंगे. इट इज 1 2 3 4 5 6 7. तो मून भी हमारा कैंसर में आ गया. मार्स हमारा जो है वो पाइसेस साइन में है और मार्स है 17 डिग्री का, तो इट बिकम्स द 6th पार्ट. तो क्योंकि ये डुअल साइन में है, पहले हम वहां से 5 काउंट करेंगे. तो मार्स की अगर मार्स में अगर 5 काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहां तक पहुंच गए हम 7th हाउस तक. अब यहां से 6 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6. तो मार्स हो गया हमारा सेजिटेरियस में. लेट्स हैव अ लुक एट वीनस. वीनस इज इन टॉरस साइन and it is having a degrees of, it is at 19 degrees 11 minutes, which falls under the, कौन से पद में आया भाई? टॉरस के कौन से पार्ट में आया? वीनस ये 4th नहीं 6th पार्ट में आएगा. पार्ट में आया. तो पहले यहां से 5 काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, और फिर वहां से क्या हुआ 4th, 1 2 3 4. तो वीनस भी हमारा गेम नहीं. टॉरस है ना, तो पहले 6 काउंटिंग करेंगे ना, सॉरी. तो वीनस के लिए पहले 9 काउंट करेंगे क्योंकि टॉरस साइन है ना. आई एम सॉरी. तो वीनस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर वहां से वीनस जो है 6th पार्ट में है, तो 1 2 3 4 5 6, तो जेमिनी में आ गया. लेट्स मूव अहेड. तो ऐसे ही हम बाकी के लिए भी काउंटिंग कर सकते हैं. इफ यू वांट वी कैन डू वन मोर. व्हाट डू यू से? बोलिए गुप्ता जी. इलस्ट्रेशन काउंटिंग तो हो जाएगा ना. एक और कर लेते हैं, चलो मरकरी कर लेते हैं. मरकरी 12 डिग्री 35 मिनट का है, 4th पार्ट. और मरकरी कहाँ बैठा है हमारा? जेमिनाई में. तो इसमें पहले 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 1 2
3, 4, 5 और फोर्थ पार्ट है ना, 1, 2, 3, 4, it becomes Capricorn. So finally this is the Norman's chart. Sun Moon in the fourth house or the fourth sign. The Norman starts from Aries. This becomes the Norman's chart. अब इसका यूटिलिटी क्या है? So we'll talk about a concept which is called Vargottama. Okay. वर्गोत्तम में क्या है? अगर हम एरीज साइन की बात करें तो कोई भी प्लैनेट एरीज की या फिर 1, 4, 7, 10 की मूवेबल साइंस में अगर कोई भी प्लैनेट फर्स्ट पार्ट में रहता है या फिर फर्स्ट अंशा में रहता है तो वो नवमांश में भी उसी साइन में जाएगा. उसी साइन में जाएगा ना, कि अगर कैंसर के फर्स्ट पार्ट में तो कैंसर में जाएगा ना नवमांश चार्ट में. ओके. सो द प्लैनेट्स जिनका नवमांश का साइन और लगन का साइन सेम होता है, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज वर्गोत्तम प्लैनेट्स. जो भी प्लैनेट्स हमारे चार्ट में वर्गोत्तम होते हैं, they are very benefic in nature and they give very good results to a person. ठीक है. अगर फिक्स्ड साइन है 2, 5, 8, 11, उसमें तो जो फिफ्थ डिवीजन होगा ऑफ दैट साइन वो ओन साइन में ही फॉल करेगा. यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा भी रखा है. देखो, आई रिटन 1 एरीज में 1 to 9, टॉरस में 10 to 6 एंड जेमिनाई में 7 to 3. तो एरी साइन में अगर कोई प्लैनेट है और वो नवमांश में भी एरीज में ही जाना चाहता है, इट मींस इट शुड बी इन द फर्स्ट पार्ट. टॉरस में अगर कोई है या 2, 5, 8, 11 में कोई भी हो और अगर वो नवमांश में भी सेम उसमें जाता है, इट मींस दैट इज इन द फिफ्थ पार्ट और डुअल इज द लास्ट पार्ट. आप देख सकते हो स्क्रीन पर. वर्गोत्तम प्लैनेट्स चार्ट में जो भी प्लैनेट आपके वर्गोत्तम है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है नेटिव को. तो लेट्स मूव अहेड. तो एरीज और दी मूवेबल राशि जो हैं, दे आर दी प्रथम राशि और दी ब्रह्म राशि. ब्रह्मा से हमारा रिलेशन होता है बिगिनिंग का, शुरुआत. अगर कोई भी प्लैनेट टॉरस या फिर फिक्स्ड राशि में वर्गोत्तम होता है तो दैट इज बेसिकली दी विष्णु राशि. तो विष्णु इज हाउ यू एक्चुअली लिव. ब्रह्मा इज द बिगिनिंग, विष्णु इज द मिडिल पार्ट. आपकी बिगिनिंग हुई, आप कैसे रहे. एंड द जेमिनी साइन द थर्ड विच इज कॉल्ड द शिव राशि, और ऑल द डुअल राशिज आर कॉल्ड द शिव राशि. They are related to Shiva, the end, beginning, then the entire span,
how do you live, and then the end. So if the first work of Pratham Rashi, the first work of Pratham Rashi is called the Vargottam. As Brahma is connected with the beginning, these have the energies of Brahma and they are classified under as Arambh Rashi. Fifth work of Madhyam Rashi is Vargottam. As Vishnu is connected to them, they have got energies of Vishnu and they are called Madhyam Rashis. And the last work of Tritya Rashi is called Vargottam. Shiva is connected with the end, and these Rashis, the end part has the energies of Shiva. They are called as the Tritya or the Shiva Rashi. If any planet is placed in Vargottam Rashi, all characteristics of the planet are seen in the native due to blessings of the deity related to the Rashi. ब्रह्मा की ब्लेसिंग्स फॉर मूवेबल, विष्णु की ब्लेसिंग्स फॉर फिक्स्ड एंड शिव जी की ब्लेसिंग्स फॉर डुअल. ओके, नाउ अलग अलग प्लैनेट्स अगर वर्गोत्तम होते हैं तो इन जनरल व्हाट आर द आउटकम्स. अगर लग्न किसी का वर्गोत्तम है तो a person will have a long life and a overall prosperous life. ओके गुप्ता जी. जी. अगर मरकरी है वर्गोत्तम तो द पर्सन विल हैव गुड स्पीच. मरकरी की क्वालिटीज आएंगी गुड स्पीच, गुड एबिलिटी टू लर्न, द पर्सन विल हैव शार्प इंटेलेक्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस भी हो सकता है, एंड देयर विल बी अ डिजायर टू लर्न एस्ट्रोलॉजी. मरकरी को एक मेन कारक माना जाता है फॉर एस्ट्रोलॉजी. अगर जुपिटर वर्गोत्तम है, जुपिटर इज द कारका फॉर फॉर्च्यून एंड विजडम, तो बंदा बहुत ही नॉलेजेबल होगा. ही विल बी लकी इन नेचर ऑल्सो. जुपिटर इज द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट, सो इट विल गिव हिम गुड फिजिक. सच्चाई को, धर्म को मानने वाला व्यक्ति होगा. अगर वीनस है शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी बूटी, हेलो हेलो. या सो मृत्यु को जिंदा करने वाली जो कला थी, मतलब मरे हुए को जिंदा करने वाला, तुमने सुना तो हो गई ना, वो सिर्फ शुक्राचार्य के पास था. विच इज कॉल्ड संजीवनी विद्या कहते हैं ना उसको. If Venus is Vargottam, the person will have very good immune system. Venus is also the karak of astrology, some people say. The person will be rich. He will have all luxuries in his life. एक luxurious, एक अच्छी life जिसमें all his five senses will get pleasures from all sides. अगर मून बहुत स्ट्रांग है या फिर मून वर्गोत्तम है, then the person will be having a very strong mind, good memory. He will be slightly emotional too.
and he will have a firm and impartial attitude also. Sun leadership qualities देगा. It will give you again the sun is the कारका for soul, sound health. एक अच्छा स्टेटस भी देगा आपको. It will give you popularity and self satisfaction. अगर केतु है, केतु will give you good mathematical powers and intuitive powers. So I've observed कि people having a fifth cuspal sublord as Ketu and a positive Ketu, उनका intuition उनका बहुत साथ देता है. So I have a client, somebody in the financial astrology, who had a Ketu, and he has mind-blowing success in stock markets. Mars is the karka for muscle. Mars gives good recuperating powers. It will give good physical strength to the native. Rahu is out of the box thinking. The Rahu Vargottam hai, the person will have the power to break all the boundaries and think out of the box. अगर Saturn Vargottam होता है, then the person will be having a lot of patience. He will live for a longer period of time. He will try to control his desires. बहुत ही principles वाला होगा, rules and regulations को follow करेगा. He will have all the power to tolerate the grief. Okay. मैंने आपको ये भी बताया कि D9 चार्ट से हम मैरिज के लिए देखते हैं. पहले मैरिज के लिए देखते थे. With the research, we have started seeing few things more. So, अगर Lord of D9 तो D9 चार्ट जो हमारा बनेगा उसमें भी there will be some राशि which will be in the लगन है गुप्ता जी. Agreed. तो अगर वो राशि का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाता है, it means that the person will have problems in the marriage. तो अगर वो छठे घर में बैठता है तो it would be a enigmatic kind of situation, a war like situation. अगर वो 8वें घर में बैठता है तो then there will be some secretive activities or some immoral activities और some sudden एकदम से कुछ ऐसा निकल के आएगा which could turn out to be negative for the marriage. अगर वो 12th में बैठता है तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं बट you will tend to feel disconnected with the spouse. Spirituality could also be one of the reasons that the person becomes more spiritual, hence he is not enjoying the marital bliss. So this is for today, Gupta ji. We will have a discussion, a detailed discussion the next time. इसके आगे का जो है discussion we will continue the next time.